گا جب یہی چہلم کا دن ہوگا اور ہمارے سامنے کربلا میں حسین کی اصلی زری ہوگی اور ہم انشاءاللہ اس کو مساتے رہیں گے۔ اور یہ ہر چاہنے والے کے دل میں تمنا ہوتی ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہی مجلس، یہی ماتم، یہی عزاداری جس نے ہماری شان و شوکت کو باقی رکھا ہے، جس نے ہماری قوم کو متحد رکھا ہے، جس نے ہماری قوم کو ایک ساتھ رکھا ہے، انہی مجلسوں کا صدقہ ہے کہ آج اسلام محمدی زندہ جاوید ہے، شریعت کے قوانین آج زندہ ہیں، پائیدار ہیں اور پائندہ ہیں۔ یہ سب کا سب جو ہے یہ صدقہ ہے انہی مجلسوں کا۔ اور بنام حسین ہم مجلس کرتے ہیں، انہی کے فضائل پڑھتے ہیں، انہی کے مسائل پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام کو بیان کرتے ہیں، شریعت کو بیان کرتے ہیں اور حسین کے چاہنے والے بیٹھ کے اسے سن لیتے ہیں۔ بس اسی کا نام جو ہے مجلس ہوا کرتا ہے ان کے آپ میں، اور ان کے نام پر کچھ بانٹا جاتا ہے، کچھ کھلایا جاتا ہے، کچھ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کا نام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے اس حسین کا نام کہ اس کے نام پر اگر کچھ بانٹ دیا جائے، اس کے نام پر اگر کچھ کھلا دیا جائے تو اللہ اس میں ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ اگر بیمار کھا لے تو شفا یاب ہو جاتا ہے۔ قسم خدا کی اگر بے اولاد کھا لے نیاز ہو تو صاحب اولاد ہو جائے، اگر حاجتوں اور مرادوں والا کھا لے تو اس کی حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائے۔ یہ نیاز حسین کا، یہ تبرک حسین کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے کم علمی کی وجہ سے ان اثرات کو کھو دیا۔ ہم تبرک کا ویسے احترام نہیں کرتے جیسے احترام کرنا چاہیے، ہم نیاز کا ویسے احترام نہیں کرتے جیسے احترام کرنا چاہیے۔ جہاں پر نیاز کھاتے ہو وہاں پر کم از کم نیاز کھانے کے بعد ایک بار حسین کو سلام کیا کرو، یزید پہ لعنت بھیجا کرو، تب وہ نیاز تمہارے لیے باعث برکت بنے گی، باعث شرف بنے گی۔ وہ نیاز کا اثر نہیں ختم ہوا ہے، یہ ہم اور آپ کے ہاتھوں کا اثر ختم ہو گیا ہے، ورنہ نام حسین پر بٹنے والے تبرک کی وہی طاقت و قوت ہے، اس کے اندر وہی اثرات ہیں۔ اور یہ جان لیجئے کہ نام حسین پر جب کھلایا جاتا ہے تو ہم بڑے شوق سے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کھلا رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کھلا رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے نام پر کھلایا جا رہا ہے۔ بھائی یقین مانیے، ابھی آپ کے گھر میں جو ہے وہ مجلس ہوئی، مجلس ہونے کے بعد آپ کے گھر میں تبرک میں سیب بٹا، اب جو ہے ہم گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ جو ہے آپ کے یہاں سیب بٹا ہے، مجلس ہوئی ہے، تو ہم نے بھی ایک بار دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے کہا جناب ہمیں تو دیجئے، ہمارا تبرک تو دیجئے، ہمیں تو دیجئے، لیجئے پورے سال میں اللہ جانے کتنی مرتبہ آپ کے گھر میں سیب آیا تھا، مگر ہم مانگنے نہیں گئے تھے۔ آپ کے گھر کتنی بار سیب آیا تھا مگر ہم مانگنے نہیں گئے تھے، لیکن وہی جب آپ نے نام حسین سے بانٹا تو اب ہم فخر سے ایسے مانگ رہے ہیں جیسے ہمارا آنا کیا لگتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب نیاز
محمد والے محمد سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم محمد والے محمد سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو آپ سمجھتے ہیں، اور بھی تو لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا دیکھیے اگر آپ حسین سے بہتر کوئی حسین لائیے، بھائی علی سے بہتر کوئی علی لائیے، تو بھائی یہ تو زمانے کا دستور ہے۔ آپ دیکھیے پہلے زمانے میں چراغ جلتا تھا، چراغ جلتا تھا، اور جب ترقی ہوئی تو وہ چراغ جو ہے گیس میں بدل گیا۔ ایک گیس چلتی تھی جس میں مٹی کا تیل ڈالا جاتا تھا اور اس میں ایک میٹل لگا ہوتا تھا، تو پھر لوگوں نے کہا کہ چراغ سے زیادہ اس میں روشنی ہوتی ہے، تو لوگوں نے چراغ چھوڑ کے اس کو لینا شروع کیا۔ لوگوں نے لیا اور اپنے جلوسوں میں اور مجلسوں میں اور اپنے پروگراموں میں گیس کا استعمال کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں گیس کو کھولنے لگی۔ کیوں؟ اب چراغ بنانے کے لیے جو فیکٹری تھی جو تین کو موڑ کے چراغ بناتی تھی، اس نے کیا کوئی آبجیکشن کیا کہ بھیا تم یہ گیس لے کے آئے ہمارے چراغ کی وجہ سے ہو گئی؟ بھائی بھیا ذرا سا میرے جوان توجہ فرمائے، کیا اس نے کوئی کیس کیا، کوئی بلیم کیا، کوئی آبجیکشن کیا کہ بھئی تم لے کے آئے میرے فیکٹری کی ویلیو ختم ہو گئی، میرے چراغ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں کیا نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چراغ سے بہتر ہے نا؟ اب اس کے بعد سسٹم چلتا رہا، گاؤں گاؤں میں لائٹ اور بجلی پہنچ گئی۔ اب جب بجلی پہنچ گئی تو کیا وہ جو گیس بنانے والی کمپنی تھی، جب اس کی بکری کم ہوئی تو اس نے کیا الیکٹرک ڈپارٹمنٹ پہ کوئی کیس کیا، آبجیکشن کیا کہ بھیا یہ تم نے بجلی پہنچا دی، ہماری گیس بکتی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے کبھی کرو آبجیکشن کرو، کہا بھئی آبجیکشن کیسے کریں، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ لائٹ گیس سے بھی بہتر ہے۔ اب وہ پہلے زمانے میں پیلا بلب جلتا تھا اور پیلے بلب سے روشنی ہوتی تھی، اب وہ پیلا بلب جلتا رہا، کچھ دن کے بعد کیا ہوا کہ سی ایف ایل آ گئی۔ اب جب سی ایف ایل آ گئی تو لوگوں نے پیلا بلب یوز کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں زیادہ روشنی ہے، زیادہ فائدہ ہے، اب کوئی پیلا بلب نہیں استعمال کرتا۔ تو کیا پیلا بلب بنانے والی کمپنیوں نے
کہ یہ بہتر تھے، بہتر ہیں اور بہتر رہیں گے۔ اب کچھ ہی لوگ ایسے ہیں نا، دیکھیے مجلس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، جلوس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، سوائے کچھ افراد کے جن کو مجلس اچھی نہیں لگتی، جلوس اچھا نہیں لگتا، ماتم اچھا نہیں لگتا، ہمارا رونا اچھا نہیں لگتا۔ کچھ ہی لوگ تو ہیں۔ ایک مرحوم مرزا محمد اطہر صاحب وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک ٹرین منمال اسٹیشن سے چلی اور اس کو ناسک تک آنا تھا، بیچ میں ایک ندی تھی، ندی کے اوپر پل بنا تھا، تو کچھ گنڈے موالیوں نے ریلوے ٹریک کو کاٹا اور کاٹ کے جنگل کی جھاڑیوں میں بیٹھ گئے کہ ٹرین آئے، ایکسیڈنٹ ہو، ٹرین پلٹے تو ہم جا کے لوٹ پاٹ کریں، ہم جا کے لوٹ پاٹ کریں۔ اب انہوں نے ٹرین کو کاٹا، جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ اب ٹرین آ رہی ہے اور ٹرین ٹوٹا ہوا ہے۔ جب ٹرین ٹوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوگا، وہ گرے گی، پلٹے گی، لوگ مریں گے۔ وہ کاٹ کے جھاڑیوں میں بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ ٹرین آ رہی ہے اور ادھر دیکھا کہ ٹرین ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے سر پکڑ لیا کہ یہ تو لاکھوں لوگ مر جائیں گے، اور ٹرین آئے گی، ایکسیڈنٹ کا شکار ہوگی، لوگ مریں گے۔ اس نے جلدی سے اپنے جسم کو کاٹا، اپنی سفید شرٹ اتاری، خون میں لت پت کیا اور اپنی چھڑی میں شرٹ کو لگا کے ریلوے ٹریک پہ کھڑا ہو گیا۔ اب جو ڈرائیور نے دور سے دیکھا کہ لال رنگ، تو اب اس نے اسپیڈ کم کرنا شروع، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسپیڈ اس نے کم کرنا شروع کی اور ٹوٹے ہوئے ٹریک تک آنے کے پہلے ٹرین رک گئی۔ سبحان اللہ۔ جب ٹرین رکی تو ڈرائیور بھی اتر کے آیا، بھئی کیا بات ہے؟ وہ لے کے گیا، کبھی دیکھو ٹرین ٹوٹا ہوا ہے، اگر تمہاری ٹرین آتی تو ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتی اور اس میں دسوں ہزار لوگ مر جاتے۔ اب جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی، اس نے ناسک میں خبر کیا، منمال اسٹیشن کو خبر کیا، ساری فورس آئی، جی آر پی آئی، پیپر والے آ گئے، ٹی وی والے آ گئے، چینل والے آ گئے، سب اس سے بیان لے رہے ہیں، سب اس کو انعام دے رہے ہیں، سب اس کو تحفے دے رہے ہیں، ٹی ویوں پہ چل رہا ہے، سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کی جان بچا دی۔ ذرا سے توجہ فرمائیے، اب کیا ہوگا؟ ٹی وی والے خوش، پیپر والے خوش، میڈیا خوش، سب
देखिए इंसान के पूरे जिस्म पर जो सबसे बड़ा असर होता है ना, वो खाने का ही होता है। खाने का ही असर होता है। और ये जान लीजिए पूरी कायनात में तबर्रुक से ज्यादा पाको पाकीज़ा कोई ग़िज़ा नहीं है। कितना असर होता। एक शख्स खिदमत रसालत में आया, कहने लगा या रसूलल्लाह, मेरा एक बेटा है, जवान है, मगर वो मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनता, मुझी से ज़बान लड़ाता, मुझी से बहस करता, जबकि बेटे की क्या जिम्मेदारी है? अपने बाप की आवाज से ऊंची आवाज में कलाम नहीं कर सकता। सारे जवान बोले, अपने बाप से ज्यादा ऊंची आवाज में कलाम नहीं कर सकता। कुरान में कहा ला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप के सामने उफ भी नहीं करते। और ये जान लीजिए जिसने अपनी जिंदगी में माँ बाप का एहतराम नहीं किया, वो कायनात में किसी का एहतराम नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, है मेरा ही बेटा, मगर वो जुर्रत करता है, हिम्मत करता है, और जब भी कोई बात कहता हूं मानता ही नहीं। तो या रसूल अल्लाह कुछ बता दीजिए, कुछ पढ़ दीजिए। जैसे हमारे यहाँ होता है, मौलाना साहब ये बहुत बदतमीज हो गया है, बहुत शरारती हो गया है, कुछ ऐसी दुआ बता दीजिए कि इसकी शरारत होता है ना। अच्छा, हमारे समाज में आप हम किसी के बच्चे को कहेंगे आपका बच्चा बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करता है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ वाकई शैतान है, नहीं मानता कोई बात। अब रसूल ने कहा ठीक है, अपने बच्चे को लेके आना। दूसरे दिन अपने बच्चे को लेके पहुंचा। रसूल ने देखा, कहा तुम्हारा बेटा है? कहा जी हुजूर मेरा बेटा। कहा तुम्हें मालूम है ये तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करता, ये तुम्हारा एहतराम क्यों नहीं करता, ये तुम्हारी बातें क्यों नहीं मानता, मालूम है? या रसूलल्लाह बताइए। कहा इसमें बेटे की गलती कम है, तुम्हारी गलती ज्यादा है। क्या सुन रहे हैं आप? बेटे की गलती कम है, तुम्हारी गलती ज्यादा है। या रसूलल्लाह कैसे? मेरी गलती कैसे? कहा याद करो अपना जवानी का वो लम्हा जब तुम्हारे घर के सामने एक खजूर बेचने वाली औरत आई थी, और वो खजूर बेच रही थी। तुम आगे बढ़े, 2 खजूर उठाया और तुमने खा लिया। उससे पूछा क्या हिसाब है, और 2 खजूर खा लिया। न तुमने उस खजूर की उजरत दिया, न तुमने उस खजूर की इजाजत ली। जैसे हम पढ़ा करते हैं ना कि अक्सर मूंगफली सिंघाड़े, हम पहुंचे ठेले पर, उठाया, कै रुपये किलो भैया? भाई आप उसका माल खा रहे, उससे इजाजत लिया है आपने? क्या अर्ज कर रहा हूं भाई, जिसका माल आप खा रहे हो उसके दिल को तकलीफ होगी। आप बगैर पूछे उससे खाए ले रहे हो, वो इस शर्म में नहीं बोल रहा है कि हो सकता है कि आप उसकी कुछ 1-8 किलो खरीद लो आप, इसलिए जो है वो नहीं बोल रहा, लेकिन उसका दिल ये कह रहा है कि अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारे जैसे दिन भर में 70 लोगों ने 2-2 दाना खा लिया तो मुझ गरीब का तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अब ये मजलिस सुनने के बाद जितने अज़ादार बैठे आज के बाद, कभी ऐसा न करना कि बगैर इजाजत किसी का एक लुकमा भी उठा के खा लो। ये सबक लेके जाना है चहलुम की मजलिस से। काश में वो जो औरत खजूर बेच रही थी, तुमने बगैर उसकी इजाजत के खजूर खा लिया। ये उसी रात का नुत्फा है, ये उसी रात का नुत्फा है, ये उसी रात का नुत्फा
पाक व पाकीज़ा और हलाल हो। अगर हमने हराम खाया तो उसका असर बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारी माओ ने हमारी कमसिनी में तबर्रुक खा खा के दूध पिलाया था। इसलिए आज हम फर्श अज़ा पे बैठ के अली का नाम शौक से लेते हैं, फख्र से लेते हैं। वरना जनाबे सलमान ने जब मौला अली के पास एक खजूर का तबक रखा हुआ था और अली ने खजूर खाई, बाला खाने पे बैठे थे, गुठली उठा के सलमान के सर पे मार दिया। सलमान ने सोचा हो सकता है आ गई हो। अली ने दूसरी खजूर खाई, फिर गुठली सर पर फेंकी। जब तीन गुठली अली के सर पर फेंकी तो सलमान ने हाथों को जोड़ के कहा, मौला मैं बुजुर्ग हूँ, आप जवान हैं, क्या ये हम लोगों का मजाक अच्छा है? तो अली ने मुस्कुरा के कहा, सलमान तुम मुझसे बुजुर्ग हो? कहा, मौला कमर खमीदा है, सर के बाल सफेद हो गए, जाहिरन तो ऐसे ही दिख रहा है। तो अली ने कहा कि अपनी बुजुर्गी मैं बताऊं या तुम बताओगे? यार आपकी बुजुर्गी है, आप बताइए। कहा, जब तुम इस्लाम लाए थे और लोग तुम्हारी जान के दुश्मन हो गए थे तो तुम भागते हुए किसी जंगल में पहुंचे थे? यार पहुंचा तो था। कहा, उस वादी का नाम मुज़दलिफ़ा था, यानी मुज़दलिफ़ा ही नाम था, लेकिन आपको उस वादी से क्या मतलब? वो तो मेरे नौजवानी की बात है। तो मेरे मौला ने कहा, सलमान बस मैं जितना पूछता जाऊं उतना बताते जाओ। मुज़दलिफ़ा थी वादी? कहा, यार वादी तो थी। कर ये बताओ कि जब तुम एक हौज़ के पास बैठे थे तो तुमने देखा कि जंगल से एक शेर आ रहा है? सलमान ने कहा, हाँ यार, लेकिन आपको कैसे मालूम? कहा, मैंने कहा तुम हाँ या नहीं करो। कहा, हाँ यार, शेर तो आया था। कहा, तुम घबराए थे, तुम परेशान हुए थे, तुम डरे थे, खौफज़दा हुए थे? हाँ यार, मैं बहुत डरा हुआ था। कहा, फिर तुमने क्या किया? सलमान कहते हैं, यार मैंने हाथों को बुलंद किया, बुलंद करने के बाद कहा कि ऐ खुदाए वहदहू ला शरीक, सलमान मुश्किल में है, मेरी मदद कर। का सलमान उसके बाद क्या हुआ? यारी मैंने देखा कि जंगल की वादियों से एक सवार आया, चेहरे पे नकाब डाले हुए था, और जैसे ही करीब आया नियाम से तलवार निकाली, शेर के दो टुकड़े किए। मैं खुश हो गया। खुश होने के बाद जल्दी से जंगल में गया, फूलों को तोड़ना शुरू किया। लाल फूल, पीले फूल, हरे फूल, हर कलर के, हर रंग के फूलों को तोड़ा और एक गुलदस्ता बनाया। गुलदस्ता बना के मैंने उस सवार को तोहफे में दिया। एक मरतबा अली ने कहा, तुम्हें याद है तुमने फूलों का गुलदस्ता बनाया था, सवार को दिया था? कहा, या अली दिया था। अली ने अपनी आस्तीन को हिलाया, वही गुलदस्ता निकल के आया। जरा सा तवज्जो लीजिए, वही गुलदस्ता
بھول گئے. سلمان سوچنے لگے لیکن سوچتے کیسے؟ سلمان تو مجھ سے دیکھ چکے تھے. لیکن ایک جملہ کہا سلمان نے ہمت کر دی. کہا یار میں نے جو اپنے ہاتھوں کو کھایا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ اے خدائے وحدہ لا شریک، اے محمد کے خدا، اے رحمتوں کے پروردگار، میری مدد کر. یعنی میں نے مدد تو اللہ سے مانگی تھی. میرے جوانزے اور صاحب کو خدا حسین کا واسطہ سلمان کہتا یعنی میں نے مدد تو اللہ سے مانگی تھی. تو ایک مرتبہ علی مسکرائے، نادان سلمان تمہیں معلوم نہیں ہے آدم نے اللہ سے مدد مانگا، نوح نے اللہ سے مدد مانگا، ابراہیم نے اللہ سے مدد مانگا، موسیٰ نے اللہ سے مدد مانگا، عیسیٰ نے اللہ سے مدد مانگا، یوسف نے اللہ سے مدد مانگا. سب نے مدد اللہ سے مانگا مگر اللہ اس کو بھیجتا ہے اسے علی مدد کا سب نے مانگا. پھر سلمان نے کہا یا علی آپ نے 1,23,999 انبیاء کی مدد آپ نے چھپ چھپ کے کیا. بھائی کسی کے سامنے نہیں آیا. 1,23,999 انبیاء کی مدد آپ نے چھپ چھپ کے کیا اور آج رسول کی مدد آپ کھل کے کر رہے ہیں. علی کی محبت میں شرشار ہو کے سننا. ایک علی کا چاہنے والا علی والوں کا مجمع میں علی کی بات کرتا ہے یا علی 1,23,999 انبیاء کی مدد چھپ کے کیا، رسول کی مدد کھل کے کیا. ایسا کیوں ہے؟ علی نے کہا نادان تم نے غور نہیں کیا، ایک کی مدد کھل کے کی تو لوگوں نے خدا کہہ دیا. بھائی ابھی ایک کی مدد کھل کے کی تو لوگوں نے خدا کہہ دیا. سب کی مدد اگر کھل کے کرتا آ رہا ہوتا کیوں؟ کیونکہ مدد تو سب نے مانگی، چاہے دوست ہو چاہے دشمن. اور یہاں تک تو بہرحال روایتوں نے حدیثوں نے مجبور ہو کے لکھا کہ لوگوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم مر جاتے. علی نہ ہوتے کیوں؟ ایک ایسا بادشاہ دولت مند رئیس جس کے پاس 3 غلام تھے اور وصیت کر کے مر گیا. وصیت اس نے کیا کہ میرے ایک غلام کی شادی میری بیٹی سے کیا جائے، ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے اور ایک غلام کو قتل کر دیا جائے. مگر یہ آدھی ادھوری وصیت کرنے کے بعد مانے. تو جب غلاموں نے پڑھا تو ظاہر ہے کہ تو لبڑے اور ٹنگے چھڑ جانے کے کون قتل ہونے کو تیار ہوگا. سب نے کہا کہ بھئی میرے لیے اس نے شادی لکھا، ساری دولت مجھے ملتا. اب یہ معاملہ بڑا مشہور ہوا، عرب میں مشہور ہوا. اچھا جو وقت کے بادشاہ تھے، میں کلمہ نہیں کہتا ہوں، بادشاہ نہیں کہتا ہوں، اور وہ بادشاہ بھی شاید بغیر شین والے تھے. پہنچا معاملہ
पढ़ने के बाद कहा कि जब उसने लिखा ही नहीं, उसने नाम नहीं बताया, तो इसका फैसला कैसे होगा? ये नहीं हो सकता, गैर मुमकिन है। तो लड़ाई तो बाकी रही ना, मगर दरबार के इर्द गिर्द अली ने कंबल को लगा रखा था। कंबल जब किसी मसले में ये हार जाए और जब कोई उदास होके जाने लगे तो उसे अली के पास लेके आ जाना। अभी एक यहूदी आया, आने के बाद दरबार में दाखिल हुआ और वक्त के बादशाह से कहने लगा कि ऐसा है कि मेरे पास एक मसला है, वही मसला मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो मसला मुझे समझा दो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। कौन सा मसला है? का मसला ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ तो खुदा का चेहरा किधर है। अरे यहूदी था ना, कहने का मैं ये जानना चाहता हूँ खुदा का चेहरा किधर है। तो जाहिर है कि जब दूसरों का हक मार के मसनद ली जाती है तो हश्र भी यही होता। तो यहूदी को दरबारियों ने मारा, ज़दो-खून किया, उसे भगा दिया। तू नास्तिक है, यहूदी है, तू क्या जानता? कोई अल्लाह का चेहरा होता है? जो हम तुम्हें बता दें अल्लाह का चेहरा किधर है। अब ये जब बेचारा मार खा के बाहर निकला ही था, इसने सोचा अच्छा खासा आया था इस्लाम लाने, और क्या मालूम था कि मुसलमान इतने बदतमीज होते हैं। बाहर निकला था कि कंबल पहुंचे। क्या बात? ये मसला लेके गया था। कहा तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे पास अक्ल नहीं है। जब तुम्हें अल्लाह का चेहरा पता करना है तो चल मैं वजहुल्लाह के पास लेके चला। देखिए मैंने बहुत धीरे से बहुत बड़ा जुमला कहा। चल वजहुल्लाह के पास, वो बताएगा खुदा का चेहरा किधर है। लाए, बैठाया, का बयान कर। यहूदी ने कहा या अली मैं ये जानना चाहता हूँ तो खुदा का चेहरा किधर है। अगर कोई बता दे कि खुदा का चेहरा किधर है तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अली ने कहा कंबल शमा लेके आओ। शमा, अली ने शमा जलाया, जला के यहूदी से पूछा बता इसका चेहरा किधर है। क्या सुना आपने? कब बता इसका चेहरा किधर है। यहूदी ने कहा या अली ये तो नूर है, चारों तरफ फैला है, तो खुदा की नूर है पूरी दुनिया में। ये खुदा का चेहरा पता कर रहा है। कहा या अली मुझे पढ़ाइए कलमा, मुझे पढ़ाइए कलमा। अली ने कलमा पढ़ाया। अब ये बताइए अली ना होते तो ये जो मसला था ये इतना पेचीदा था कि बड़े बड़े दानिश्वर और अक्लमंद और जब पूरा दरबार हैरान रह गया कि इन तीन गुलामों में किसको कत्ल करना है, किसको आजाद करना है। जब सब परेशान हो गए तो जिस तरह खिलाफत चारों तरफ से घूम फिर के अली के दर पे सजदा करने आई थी, ऐसे ये मसला भी आया। मेरे मौला ने कहा कि कंबल जाओ ऐलान कर दो कि कल ज़ुहरैन के बाद अली इस मसले को हल करेगा। अब सबको पता है, लिहाजा एक जम्मे गफीर बहुत बड़ा मजमा आया कि देखें अली फैसला क्या करते हैं, देखें अली फैसला क्या करते हैं, फैसला कैसे करते हैं। पूरा मजमा जब आ गया तो अली ने बुलाया तीनों गुलामों को। पहले को बुलाया, कहा देख ये जो वसीयत है ये अजीब वसीयत है,
तुम्हें पता है ना कि अली अगर चाहे तो एक ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर सकता। जाओ अपने आका की कब्र को खोदो और उसे निकाल के ले आओ, ताकि मैं उससे पूछूं कि पहले गुलाम का नाम क्या है जिसकी शादी करना है। तो उसने अपने हाथों को सर पर रख लिया, का मौला वो मेरा आका था, मैं गुलाम, वो सरदार, मैं नौकर, मैं उसकी कब्र को खोदूं? अरे मेरे आका, मुझसे ये नहीं हो सकता। उसका मैंने नमक खाया है और मैं उसकी कब्र को खोदूं? मौला ये नहीं हो सकता। उस गुलाम को अलग किया, दूसरे को बुलाया, कहा देखो वो तो कब्र खोदने गया नहीं, और जब तक मुर्दा आएगा नहीं अली कैसे पूछेगा, लिहाजा तुम चले जाओ, तुम जाकर खोद के लाओ। तो इसने बेलचे को लिया, लेके बढ़ा, अभी चंद कदम चला था कि कहने लगा कि नहीं मैं गलत करने जा रहा हूँ। उसके ज़मीर ने मलामत किया, कहने लगा कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो फिर मैं गुलाम किस बात का, वो मेरा आका था, जिंदगी भर उसका नमक खाया, और मैं ऐसा कर दूं ये गैर मुमकिन है। अब वो भी वापिस आएगा, या अली आप मुझे दें या न दें, मगर मैं अपने आका की मैयत के साथ बेहुरमती नहीं कर सकता। अब तीसरे को बुलाया, तीसरा होता ही खतरनाक है। अब तीसरे को बुलाया, जाओ और जाकर मैयत को उखाड़ के लाओ ताकि मैं तुम्हारा फैसला करूं। ये बड़े जोश में बेलचा कांधे पर रखा और चला दंदनाता हुआ। जैसे ही ये चला तो अली ने कब्र को भेजा, जाओ ये कब्र में बेलचा चलाने न पाए। अभी ये चलाना चाहता था कि पीछे से कमर ने पकड़ लिया, चलो फैसला हो गया। देखिए आखिरी आदमी तक तवज्जो, चलो फैसला हो गया। जब वापिस आए तो अली ने मजमे को मुखातब किया कि देखो जो अपने आका की, अपने सैयद और सरदार की इज्जत कर रहा है उसकी शादी बेटी से करो, और जो कम इज्जत कर रहा है आधी दूर जाकर वापिस आ गया उसे आजाद कर दो, मगर जो इतना बदतमीज है
हमें करना। हमारी अपनी मस्जिदों का, इमाम बारगाहों का, अलम का, ताज़िये का, जुलूस का। और एहतराम सिर्फ चूमने से और बोसा देने से नहीं होता है। एहतराम होता है कि जुलूस के अंदर आप बहस न करने लगे। एहतराम होता है कि एक दूसरे को बुरा भला न कहने लगे। एहतराम होता है कि ये ना सोचे बस हम ही हम हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। समझ रहे? ये मोहब्बत और ये हमदर्दी हमारे अंदर होना चाहिए। हम हर चीज का एहतराम करते हैं। कसम खुदा की आज नासिक के इस अज़ाखाने से, इस मस्जिद से एक ऐसा पैगाम दे रहा हूं जिसे अगर आपने अपने सीनों में उतार लिया तो आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब आ जाएगा और कसम खुदा की लायक बख्शिश हो जाओगे और जन्नत तुम्हारा इंतजार करेगी अगर मेरे इस पैगाम को आपने दिलों में उतार लिया। बड़ा अजीब पैगाम है, एहतराम हमें करना। आप ये बताइए कि इस अलम का एहतराम हम कर रहे हैं किस लिए? इसलिए कि ये मंसूब है गाजी से, ठीक है? हम 2 मीटर कपड़ा लेके आए और हमने 1.5 मीटर में अपनी शर्ट बना ली, बचा आधा मीटर। तो हमारी दुल्हन ने उस आधे मीटर का जुस्तान सिल दिया। अब उसमें हमने कुरान रख दिया। एक दिन क्या हुआ कि हमारी शर्ट जमीन पर पड़ी थी तो बच्चे पैर रख करके गुजर रहे थे, मगर न किसी ने रोका न किसी ने टोका। और दूसरे दिन जुस्तान गिर गया। जब जुस्तान गिरा तो हमारा 2 साल का बच्चा, उसका जरा सा पैर पड़ा कि मां आगे बढ़ी, उठाया, उठा के चूमा, बच्चे से कहा नहीं ये जुस्तान है। क्या सुन रहे हैं आप? मैं कहूँगा दुल्हन वही कपड़े की शर्ट भी है, वही कपड़े का जुस्तान भी है। कब बात तो सही है लेकिन वो शर्ट आपसे मखसूस है। हम इस लकड़ी को काट के लाए और हम अपने घर में हमने बाहर उसको लगा दिया और उस पर हम कपड़ा डालते हैं, ठीक है? लेकिन हम 2 लकड़ी लाए, एक लकड़ी का हमने अलम बनाया। अब जो अलम की लकड़ी है वो अज़ाखाने में रखी हुई है और जो कपड़े डालने वाली है वो बाहर रखी हुई है। लेकिन अब उसमें अलम बन चुका, अब उसको हम छूते हैं, उसका एहतराम करते हैं ना। जबकि लकड़ी तो वही है, इस लकड़ी को पैरों में रखते हैं, उसे अपने सर पे रखते हैं, वही है तो वही। लेकिन ये एहतराम है निस्बत का। हम जो है घोड़ा लेके आए, हमने सुलझाना बनाया। अब जब सुलझाना बनाया तो हम उसे चूम रहे हैं, सारे लोग चूम रहे हैं। ऐसे हम हजारों बार रोड पे निकलते हैं, सैकड़ों घोड़े होते हैं, कभी हमने किसी को नहीं चूमा। मैं नमस्कार से कर रहा हूं। देखिए बड़ा अजीब पैगाम है, लेकिन आपको अपने दिल में उतारना है। अगर जिंदगी में इनकलाब चाहते हो, हमने कभी रोड पे दौड़ने वाले घोड़ों का बोसा नहीं किया, उनका एहतराम नहीं किया, लेकिन जब हमने
मिट जाएंगी और हम सब एक दूसरे का एहतराम करेंगे। और आप यकीन मानिए, आप अगर अपने भाई का एहतराम करेंगे तो आपका भाई भी तो आपका एहतराम करेगा, भाई इज्जत आपकी भी तो बढ़ेगी। भाई आप अपने अगर किसी भाई का एहतराम करोगे तो वो भाई भी तो आपका एहतराम करेगा। आपकी नीयत अच्छी होगी, आपके नाम में अमाल में अजर सवाब लिखा जाएगा। लेकिन शायद मेरे इस जुमले पे आप अमल न करें, लेकिन कसम खुदा की जिस दिन आप इतना एहतराम करने लगे अपने मोमिन भाइयों का, अज़ादारों का, अली के आशिकों का, तो ये जान लीजिए कि नफरतें खत्म हो जाएंगी और दिल में हमदर्दी और मोहब्बत के चमनिस्तान नुमाया हो जाएंगे। बस मेरा मौला हुसैन यही चाहता था करबला के सलाम कि ऐ हुसैन के अज़ादारों, ऐ मेरे मातमदारों, तुम्हें मालूम है कि मेरे ऐसे ऐसे सहाबी कि अपनी गर्दनों पे तलवार रखी, मौला हमें चाहे जितनी बार कत्ल किया जाए मगर आपकी मोहब्बत में हम कत्ल होते रहेंगे, ये हमें मंजूर है। लीजिए अरबाब जेलूम का दिन आ गया और दिन भी तमाम होने वाला है। आप अपने दिल की गहराइयों से कहिए, ऐ मौला हुसैन, रहे जो अगले बरस हम हैं और ये कम है, रहे जो अगले बरस हम हैं और ये कम है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम हो रहा है दरबार के टूटे हुए घर में। ज़ैनब कभी रवा गुस्सा देती है, कभी उन्हें मखदूम को गुस्सा देती है, कभी अपने भाई को गुस्सा देती है। अरे अज़ादारों बहुत दूर दूर से आए हो जेलूम करने के लिए, इमाम के दरबार में अपनी हाज़िरी सब करा देना रोके और कहना मौला हमारे गिरिए को कबूल कर लेना। लेकिन आपको बताएं कि जब लूटी हुई ज़ैनब जेलूम करने गई थी, चादरें आ गई। मैंने कल रवायत पढ़ी थी कि चादर आई, ज़ैनब लेके जिंदान में गई। वहां पर भैया अब्बास मिले। ज़ैनब ने कहा भैया तुम तो करबला के सहरा में थे। अब्बास ने कहा ज़ैनब सकीना के बगैर मुझे चैन नहीं। ज़ैनब ने चादर को कब्र सकीना में डाला और डाल के जुमला का बिलाल हम वतन जा रहे हैं। ऐ सकीना क्या वतन न चलोगी? लीजिए ज़ैनब आ गई। शाम की बहुत सी औरतें आई थी ज़ैनब को रुखसत करने के लिए कि ज़ैनब जा रही है, ज़ैनब जा रही है। जब सारी औरतें आ गई ना तो ज़ैनब ने एक जुमला कहा, काहे शाम की औरतों हम जा रहे हैं मगर इतना ख्याल रखना कि मेरी भतीजी सकीना बड़ी अकेली है, मेरी सकीना की कब्र पर एक शम्मा जला दिया करना। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। एक मरतबा सैयद सज्जाद से पूछा गया, सैयद सज्जाद तुम्हें कितने ऊंट चाहिए? बहुत कयामत का जुमला है अहबाब ऐसा। सैयद सज्जाद कहते हैं कि 3 या 5 ऊंट काफी है हमारे लिए। फिर सैयद सज्जाद कहते हैं यजीद जब हम मदीने से चले थे
बशीर इब्न जज़लम है। आगे आगे फैसला ये हुआ, ज़ैनब ने कहा मेरे लाल सज्जाद, पहले हम करबला चलेंगे, हमने शहीदों की कब्रों पर पुर्जा पेश करना है, हमें अपने शहीदों पर रोना है। लीजिए, करबला में सिराने हरम आ रहे हैं, लेकिन पहला शायर जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हुसैन की कब्र से लिपट के रो रहे थे। मौला तुम्हारे अकबर को मारा गया, मौला तुम्हारे असगर को मारा गया, मौला तुम्हारे अब्बास को मारा गया, मौला तुम्हारे कासिम को मारा गया। अरे अब्दुल्ला पुरसा दे रहे थे, इतने में कब्र हुसैन से आवाज आई, जाबिर मेरी कब्र से दूर जा, मेरी कब्र से दूर जा। जाबिर तरफ से, मौला कोई गलती हो गई, का गलती नहीं हुई, अरे मेरी लूटी हुई जज़ाकल्लाह, रो बाबे साहब। सुनो, एक रिवायत सुनो, तुम्हें पुरसा पेश करने में आसानी हो। अबू बसीर छठे इमाम थे, मजलिस हो रही थी। एक मर्तबा अबू बसीर से छठे इमाम ने कहा, अबू बसीर तू मेरे जन्म के गम में रोता नहीं है। अबू बसीर ने रुमाल निकाला, रुमाल गीला था, कहा मैं रो तो रहा हूँ। छठे इमाम ने तड़प के कहा, अबू बसीर ऐसे नहीं, अरे मेरे जन्म के गम में ऐसे रो जैसे जन्नत में मेरी दादी माँ ने। जज़ाकल्लाह, खुदा कोई अपने जाबिर कहते मौला कोई गलती तो नहीं हुई। कहा जाबिर गलती नहीं हुई जाबिर, लेकिन मेरी बहन बहुत दिनों के बाद एक बहन अपने भाई से मिलने आ रही है, तू चला जा। जाबिर हटे, झाड़ियों में चले गए। क्या देखा, एक काफिला आ रहा है। अभी जब काफिला पहुंचा ना, तो सब बीवियों ने अपने वारिसों की कब्र पर अपने को गिरा दिया। ज़ैनब ने जब अपने को हुसैन की कब्र पे गिराया, तो एक जुमला कहा भैया हुसैन, अरे ज़ैनब को माफ करना, जो सकीना लेके गई थी, वो सकीना शाम। जज़ाकल्लाह मौला, सर झुका के रोना चैनों की मजलिस है। अल्लाह जाने किसके पहलू में एक पूरा ईमान अपने हाथों की रख लिया। जज़ाकल्लाह, बीवी हम गुनाहगार हैं, हमारे आंसुओं को कबूल कर लेना बीवी। अब क्या हुआ, ज़ैनब ने कहा भैया माफ करना, जो अमानत दी थी वो अमानत खो के आ गई। लीजिए, उधर सैयद सज्जाद आगे बढ़े। कुरान ने कहा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से, आका एक बीमार है, एक बूढ़ा है, कहा मुझे करीब लेके चल। जब अब्दुल्ला करीब पहुंचे ना, तो खुशबू से पहचान गए कि ये मेरा चौथा इमाम है। अरे पढ़ के गले से लगाया, जब गले लगाया इमाम ने जल्दी से हटाया। जाबिर ने कहा मौला इस गुनाहगार से क्या गलती हुई, मेरा चौथा इमाम कहता है जाबिर गलती नहीं हुई, मेरी गर्दन में जख्म है। अरे